रिक्वायरमेंट है, कुछ भी हो बट हमें 90 दिन ज़ूम सेशन अटेंड करना है। सो फटाफट से आप कॉल कर लीजिए और इनवाइट कर लीजिए, जितने भी दोस्त आपके बाकी हैं उनको कॉल कर लीजिए। और हो सकता है कि उनको शायद याद ना रहा हो या फेस्टिवल मोड में हो, बट उनको कॉल कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके दोस्तों बार-बार नहीं मिलते। रोज़ हम शाम को 8 बजे का इंतज़ार करते हैं और एक यही एक मूल मंत्र है सक्सेस का, सफलता का यही एक मूल मंत्र है। ज़ूम ही एक ऐसा साधन है जहाँ से हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सो आप सभी का मैं दिल से स्वागत, वंदन करता हूँ और 2 मिनट आपको और देता हूँ, तो इनवाइट कर लीजिए और फाइनली कॉल दे दीजिए, स्टेटस में स्क्रीनशॉट लगाइए, आपके ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, जॉइन फास्ट का आप मैसेज डालिए। सो अगले 2 मिनट में हम सेशन स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कॉल, कॉल, कॉल योर टीम एंड न्यू गेस्ट्स। Optimizing liquidity and rewards without human intervention or bias. AIPF is not governed by fixed rules. It is governed by intelligence. Artificial intelligence continuously analyzes liquidity, participation, and market behavior, adjusting rewards, emissions, and stability in real time. Every stake strengthens the system. Every transaction feeds the ecosystem. Every cycle makes AIPF smarter. Nothing drains it. Everything reinforces it. With autonomous liquidity protection, intelligent burn and recycle mechanisms, and continuous AI health checks. AIPF is built to endure, not to speculate. This is not the future of DeFi. This is the next evolution of finance. Welcome to AIPF. AIPF, AI-powered finance that thinks, adapts, and grows. It protects stakers during market volatility. Then comes ARP, it is Auto Reinvest Protocol. It collects all fees from the user, from user actions actually, and routes them to the treasury. Then this Hi everyone, Isom is here. Today is a powerful moment for the AIPF community because AIPF is trending strongly across DeFi space on the Polygon network. This momentum didn't happen overnight. This is the result of real architecture, autonomous systems, and of course a community that believes in building something real and sustainable. To everyone who are already staking and receiving daily rewards, these milestones belongs to you guys. You are the part of living autonomous financial system that is operating exactly as designed. And for those who are just discovering AIPF, this is still the beginning. But what we are building is not about speed, it's about longevity. And AIPF is trending not because of popularity, but because of validation, and it serves as a proof that decentralized AI-governed finance can work and work at a scale. So guys, thank you for standing with us, trusting the process, and shaping the future together. As I said, this is only the beginning, so stay tuned and have a nice one.
सो अगेन फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको दिल से आज होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। और मैं कृष्णकांत रजक आप सभी का दिल से स्वागत, बंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ में दोस्तों एक बार मैं जानना चाहूंगा आज हमारे ऐसे कितने दोस्त हैं जो आज वेरी फर्स्ट टाइम इस जूम सेशन का हिस्सा बन रहे हैं। सो कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज। जो भी दोस्त आज पहली बार इस जूम सेशन में आ रहे हैं, सो अगर आप आपका हैंड रेज कर सकें, कंफर्ट जोन में है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। Please raise your hands so that it may we know that how many of you are new in this Zoom session. वाओ 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 वाओ, ग्रेट। बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं। आई एम रियली अमेज्ड। और आज का फेस्टिवल सीजन होने के बाद भी, आज त्योहार होने के बाद भी, इतना बड़ा त्योहार होने के बाद भी, और कहीं ना कहीं पे फुल एंजॉय वाले मोड में होने के बाद, है ना, आज इतने सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जिसमें से मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आज हमारे बीच में जो नए दोस्तों में से शामिल हुए हैं, जिसमें मिस्टर माखन सिंह जी हैं, टीकम सोलंकी जी हैं, मिस्टर राजन चौहान, मिस्टर प्रशांत धतवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरविंदर सबलोक जी हैं, सुदामा यादव जी, सुरजीत सिंह जी हैं, अनूप पटेल जी हैं, मुकेश अधिकारी जी, रोहिणी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर RN गर्ग जी, नजारियस इक्का, बहुत बहुत स्वागत है। मीना जी, अमित कुमार जी, पूना पूनापुरी गोस्वामी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सचिन कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और भी तेजी से हैंडेज हो रहे हैं, तो सबके नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों अभी हम ज्यादा समय ना लगाते हुए, आप लोग अपना काम करते रहिए, इनवाइट करते रहिए, और हम जूम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज का जूम सेशन जो है रियली अमेजिंग रहने वाला है, और आप पूरे सेशन को जरूर अटेंड करें। आ ही गए हैं तो दोस्तों पूरा सेशन सुन के जाइएगा, और बीच में जो है अधूरा, इसको छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपने अधूरी जानकारी ली तो वैसे ही होगा कि एक व्यक्ति ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, वो 100 रुपए की शर्ट खरीद के लाता था और 50 रुपए में बेचता था। और आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही दिन के अंदर वो लखपति बन गया। बट हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? 100 रुपए की शर्ट लेके आता था और 50 रुपए में बेचता था, कुछ ही दिन में वो लखपति बन गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या है कि पहले वो करोड़पति था, और करोड़ कोट का धंधा करते 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 लखपति बन गया, राइट? तो अधूरी जानकारी है। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि शुरू में आप इसको देखेंगे और आधी जानकारी आप लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट भी उसके जैसा है, इसके जैसा है, ऐसा है, वैसा है, तो आपको वैसा लगेगा। लेकिन जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली दिस इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, और इसके जैसा मार्केट में ना तो कोई प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है, और ना ही दोस्तों आगे भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि शायद इतनी अर्ली स्टेज में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, रियल क्रिप्टो किसको हम बोलते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट हमको मिलेगा, ऐसी आगे उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये जो है रियल प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का, और किसी MLM का प्रोजेक्ट नहीं है, और ना ही किसी नेटवर्कर के द्वारा या किसी लीडर के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई इसके जो क्रिएटर कोई हिडन नहीं है। इसके जो क्रिएटर हैं दोस्तों, आपने अभी जस्ट वीडियो देखा, मिस्टर ईशोम ईशोम जो है वो पोलैंड से हैं, और उन्होंने बिटालिक के साथ भी काम किया हुआ है, इथेरियम के डेवलपमेंट में भी काम किया है, और जस्टिन सन के साथ भी काम किया हुआ है, और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास में। एक डेवलपर्स का टीम है, और बहुत बड़े लेवल पर उनका काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप इसको पूरा ओपन माइंड से देखिएगा, समझिएगा, और आप यकीन मानो, अगर आपने पूरा इसको ओपन माइंड से समझा, अभी तक के जो भी आपके अनुभव है ना, उनको साइड में रख के अगर आपने समझा, तो यहाँ से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। सो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर हम आपको पूरे प्लान की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जस्ट अभी एक PPT के माध्यम से आपको हम दोस्तों ये प्लान शो करेंगे। आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। तो कोई कोहोस्ट प्लीज कंफर्म करें, आपको अगर वॉइस मेरा कंप्लीट आ रहा है, स्क्रीन भी कंप्लीट आ रहा है, तो प्लीज कोई कोहोस्ट उसको यस सर, कंफर्म क्लियर। चलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अपने मोबाइल को आप चाहे तो वर्टिकल रख सकते हैं, आड़े में आप पकड़ के रख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखे। AI पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम जो AI के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, और आने वाला पूरा का पूरा समय हम सभी को पता है AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो अगर हमने सही समय पे इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया, तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ से बेनिफिट लिया जा सकता है। जमाना बदलता है, टाइम बदलता है, ट्रेंड चेंज होता है, और समय के साथ में जो लोग खुद को चेंज कर लेते हैं, वो अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। और अगर जो समय के साथ नहीं बदल पाता, वक्त कहीं ना कहीं पे उसको आउटडेटेड कर देता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हो रही है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, कंप्लीट क्लियर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर।
यस यस। सो दोस्तों, जो अपना जो विजन है पूरा यही इसी तरीके का विजन है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए जहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो और कोई ग्रीड ना हो। मानव जो बोलते हैं ना कि इंसान लालच की चिड़िया होता है, तो किसी प्रकार से भी इंसान चाह कर के भी इसमें किसी प्रकार से भी कोई लालच ना कर सके, एमडी सीएमडी के हाथ में कोई कंट्रोल ना हो, और कभी भी एमडी सीएमडी के माध्यम से सिस्टम को लॉस ना हो। यहाँ पे जो पैसा है 100% लिक्विडिटी जो है वो लॉक है, साथ साथ में ऑनरशिप रेनाउंस है, कोई इसका मालिक नहीं है, हम और आप इसके दोस्तों ओनर हैं। और ये पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी बेस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज के साथ साथ में वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और अभी स्टार्टिंग है और ये 8 फेज का प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे ना तो दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ 8 फेजेस। अभी ये पहली फेज की वर्किंग स्टार्ट हुई है, और इसका जो प्रोजेक्ट है ये डेक्स का प्रोजेक्ट है, यूनिस्वैप पैनकेकस्वैप के जैसा एक प्रोजेक्ट है, जिसको आप आगे देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि रियली वी आर सो लकी कि इतनी अर्ली स्टेज में ये सिस्टम हमको मिला। तो ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो जो है इसके अंदर 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, और पांचों जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका नाम है एनईई, जो यहाँ पे इसकी मिंटिंग और बर्निंग को कंट्रोल करता है। एएलएस जो है वो इसके प्राइस को मेंटेन रखता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। एएलपी जो है वो ऑटो रीइन्वेस्ट का काम करता है। एसआईजी जो है सप्लाई इंटीग्रिटी और इसके ट्रेजरी जो है उसको मैनेज करता है। और एएलपी जो है ये सभी को कमांड देता है, उसके हिसाब से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डेक्स का प्रोजेक्ट है। और अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट फेज का वर्किंग है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि ये फर्स्ट फेज की वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है। दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और हम लोगों ने सभी को पता है कि डिसेंट्रलाइज में बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर काम किया होगा, और कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज के नाम पे क्या क्या हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हम सभी को अच्छे से पता है कि डिसेंट्रलाइज के नाम पे किस तरीके से लोगों को लूटा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो जो भी हमने पास्ट में काम किए हैं ना, उन सब से हमने लर्निंग जरूर ली है। पैसे कमाए गवाए डजंट मैटर, लेकिन जो लर्निंग लिया है ना, वही लर्निंग के आधार पे आज हम लोग खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज का फ्यूचर बड़ा हो सकता है, कौन सी चीज कितनी बड़ी लेवल पे जा सकती है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम को चेक करने का जो तरीका होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज सिस्टम को चेक कर लेते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर आप देखें तो डेक्स स्क्रीनर एंड डेक्स टूल, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। तो आप डेक्स स्क्रीनर के अंदर जाएं, और वहां पे अगर आप चेक करें कोई भी प्रोजेक्ट को, अगर आप चेक करते हैं तो जस्ट लाइक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे चेक करना है। जैसे एक मार्केट में अभी 2 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक्सवाइजेड नाम है उसका, बोलता हूँ एक्सवाइजेड नाम से चल रहा है, बाकी आपके सामने है। तो यहाँ पे देखें उसकी लिक्विडिटी जो है ना $400 मिलियन की लिक्विडिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो है ना 1 साल 11 महीने 25 दिन यानी 5 दिन के बाद 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी को बदलते हुए समय नहीं लगता, आउटडेटेड हो जाती है कोई भी चीज जब आती है ना, तो 2 साल में तो आउटडेटेड हो जाती है, तो उसको अपग्रेड करना पड़ता है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को चेक करने के जो पैरामीटर्स होते हैं, आप देखें कि 100% डिसेंट्रलाइज है, लेकिन इसके अंदर आप सिक्योरिटी में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कुछ चीजें हैं जो रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और वो बता देता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे अगर आपको भी डिसेंट्रलाइज को चेक करना आता है ना, तो आप भी यहाँ पे चेक करके बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं। तो इश्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखें रेड में जो इश्यूज दिख रहा है, एक है हिडन ऑनर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिडन ऑनर है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट XYZ नाम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसने बनाया, उसका क्रिएटर कौन है, अगर क्रिएटर है भी तो कहाँ है, राइट यहाँ पे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखें आप, हिडन ऑनर लिखा हुआ है, यस। और दूसरा चीज है सस्पिशियस फंक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर संदेहजनक कार्यप्रणाली है। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है डेक्स स्किनर बोल रहा है कि भाई इसकी जो कार्यप्रणाली है ना वो संदेहजनक है, राइट। तो कुछ चीजों को हमें चेक करना आना चाहिए। केवल लिक्विडिटी देख लेने से ही पूरा नहीं हो जाता कि भाई लिक्विडिटी इतनी बड़ी पड़ी है, तो वो कहीं पहले दिन से नहीं है, लिक्विडिटी बाद में भी आती है। और जो इसके अंदर की चीज आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर टैक्स मॉडिफाइबल में यस है, मतलब इसके टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, एक्सटर्नल कॉल दिया जा सकता है। और मिंटेबल का मतलब होता है इस कॉइन को मिंट किया जा सकता है। और साथ साथ में दोस्तों इसके टैक्स को मॉडिफाई करने का मतलब है कि सेल टैक्स को बढ़ा के 5% से 50% भी किया जा सकता है, 100% भी किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये टैक्स मॉडिफाइबल है। तो ये कुछ चीजें दोस्तों हमें चेक करना आना चाहिए। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो क्रिएटर का एड्रेस है 4351,
ये 4351 एक क्रिएटर का एड्रेस है जिसने इसको क्रिएट किया है, मतलब ये प्राइवेट वॉलेट के अंदर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, चीजें हमें देखना आना चाहिए। अगर आप टोकन स्नीफर में जाते हैं तो टोकन स्नीफर का आप स्कोर चेक करें, तो यहाँ पे दोस्तों टोकन स्नीफर है नीचे। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे और आप वहां पे चेक करेंगे तो आपको टोकन स्नीफर में इसका स्कोर भी दिखेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप समझते हो ना, टेक्नोलॉजी को समझते हो, अगर आप कोडिंग को समझते हो, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को समझते हो, अगर आपने थोड़ा सा अनुभव लिया हुआ है, तो आप देखें कि किस तरीके से इसके अंदर जो है चीजें हैं, आप उनको खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इसका स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कोर में आप देखें 100 में से 70 स्कोर है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों, सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है। काफी लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप पता कीजिए कि सोर्स कोड वेरीफाइड का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे चकड़ी मारी हुई है और इसके बाद में यहाँ पे नीचे भी आप देखें तो ये चकड़ी मारी हुई है, मतलब डिसेंट्रलाइज के नाम पे। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चेक कैसे करते हैं, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको चीजों को चेक करना आना चाहिए। तो हर एक चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है और अच्छी चीजें भी आती है। नोकिया भी कभी नंबर 1 पे हुआ करता था, और उसके बाद में जो छोटी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी जो कभी किसी को छोटी लगती है, सैमसंग और ये सब कंपनियां, उन्होंने नोकिया को मार्केट से आउट कर दिया। और उसका रीजन ये था कि नोकिया ने खुद के अंदर अपग्रेड नहीं किया, नोकिया ने खुद के अंदर चेंजेस नहीं किया। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, यही चीजें अगर हम जाके देखें, अपना AIPF को भी आपको जाके सर्च करना है, यहीं पे डेक्स स्किनर के अंदर ही आप जाएं और वहां पे उसको चेक करें। चेक करने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखें इसका जो प्राइस है $1.9937, मतलब $2 का इसका प्राइस है। लिक्विडिटी जो है अभी मात्र $1.4 मिलियन की। और सबसे खतरनाक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लिक्विड लॉक। यहाँ पे 100% लिक्विडिटी को लॉक रखा हुआ है। इसकी अगर हम एज की बात करें, 3 महीने 13 दिन इसको कंप्लीट हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय हुए 3 महीने 13 दिन हुआ है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 1 जनवरी से ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ है हम सब लोगों के लिए, वर्किंग के लिए। आप इसमें नीचे की तरफ जाके आप इश्यूज की बात करें दोस्तों, इश्यूज में आप देखें यहाँ पे टैक्स मॉडिफिएबल नो, हेड एंड ऑनर नो, ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया गया है ना, कोई इसका मालिक नहीं है। सारी चीजों को आप खुद से देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों टोकन स्नीपर का आप स्कोर देखें 100/100। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन चीजों को समझते हैं ना, तो आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज के नाम पे, मतलब बेवकूफ तो नहीं बना सकता आपको कहीं ना कहीं पे। जैसे $84 से किसी कॉइन का रेट अगर $6 आ जाए, तो आप उसके बाद भी अगर उसके अंदर मान लीजिए कि लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज तो आप समझ पाएंगे कि यार इसका प्राइस अगर 84 से $6 भी आ सकता है, तो $6 से आगे जाके $3 भी जाएगा और $2 भी जाएगा और $1 भी जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो जो क्रिप्टो करेंसी होता है ना, वो खत्म नहीं होता है, एकदम से खत्म नहीं होता, उसे लिक्विडिटी गायब कर दी जाती है। किसी किसी प्रोजेक्ट में एकदम से गायब कर दी जाती है, किसी किसी प्रोजेक्ट में स्लोली स्लोली लिक्विडिटी, स्लो पॉइजन जैसे होता है ना, तो ऐसे स्लोली 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 लिक्विडिटी निकलती जाती है। 2-2 4-4 5-5 मिलियन डॉलर रोज निकलते जाएंगे और शायद अपने को पता भी ना चले कि भाई समंदर में से कौन कितने बाल्टी पानी भर रहा है ना। अब आप देखें इसके भी कॉन्ट्रैक्ट को, आप देखें इसका सोर्स कोड वेरीफाइड है, 100/100 है। तो ये कुछ चीजें दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि चेक कैसे करना है। ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पे देखें आप, क्रिएटर का एक एड्रेस है जिसने इसको क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पे ऑनरशिप का जो एड्रेस है उसको रिनाउंस कर दिया गया, 00 एड्रेस के ऊपर उसको रिनाउंस कर दिया गया। अगर आप इसमें उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा। और जो 00 एड्रेस है, यानी इसकी जो ऑनरशिप है ना, किसी के भी पास नहीं है। आज इसका मालिकाना हक किसी के भी पास नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले ने बना के छोड़ दिया, और केवल उसको जो प्रॉफिट है वो केवल और केवल उसको कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है। हम ही लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे बिना केवाईसी के, डेक्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे बिना केवाईसी के। हम लोग यहाँ पे दोस्तों सारी एक्टिविटी कर रहे होंगे डेक्स के ऊपर, और यहाँ से बोरिंग लैंडिंग के माध्यम से भी यहाँ पे बड़ा बेनिफिट ले रहे होंगे कम्युनिटी। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो के अंदर कम्युनिटी जब तक नहीं है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज बिटकॉइन बिटकॉइन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कम्युनिटी है, राइट। तो आप देखें 00 एड्रेस के ऊपर इसको रेनाउंस कर दिया गया है, तो आज इसका कोई भी मालिक नहीं है। अब इसके बारे में अगर हमें दोस्तों देखना है तो आप इसकी वेबसाइट पे क्लिक करें। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ ये लेके जाएगा, और सारी चीजें आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लुक मिलेगा। आप सारी चीजों को देखें, नीचे तक जाएं, गो थ्रू करें, और उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसका ओवरव्यू। व्हाइट पेपर को भी आप पढ़ें, लेकिन ओवरव्यू को भी पढ़ें। अगर आपने ओवरव्यू को पढ़ लिया ना, आप यकीन मानो दोस्तों आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी कसम से। आप अब ये बोलोगे कि यार ये चीज मतलब हम हमारी जिंदगी में इतना जल्दी आई कैसे।
अभी जैसे स्टार्ट हुआ है 2 महीने पहले, लोगों को पता भी नहीं है, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि महीने 2 महीने में बंद हो जाएगा। लोग अभी इसी आशा के सहारे बैठे हुए हैं, दूसरे लोग, है ना? करने वाले तो यहाँ पे बड़ा इनकम भी लेना शुरू कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं महीने भर बाद नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी 3.5 महीने हो चुके हैं। तो इसी आप चीज़ों को देखेंगे ना, इसका ओवरव्यू को पढ़ेंगे तो मतलब आपको वही फीलिंग आएगी कि मान लो जब इथेरियम स्टार्ट हुआ था ना, और उस टाइम में अगर किसी को इथेरियम का व्हाइट पेपर मिल गया और उसने इथेरियम के व्हाइट पेपर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको समझ में भी आ गया। आप ये देखो, इत्तेफाक की बात देखो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखो। उसने इथेरियम के व्हाइट पेपर को पढ़ा और पढ़ के उसको समझ में भी आ गया। वो समझ में आ गया और उसने क्या किया, थोड़ा बहुत इथेरियम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। एज ए रिस्क उसको लगा उस टाइम में और उसने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। दोस्तों आज सोच के देखो उस व्यक्ति की लाइफ क्या होगी जिसने $1 में इथेरियम खरीदा होगा और कितने 1000-2000 इथेरियम खरीदे होंगे। सोच के देखो दोस्तों। और आज भी उसके पास पड़े होंगे स्टैकिंग में, है ना? वहां से उसको रिवॉर्ड मिल रहे होंगे। तो ये वैसा ही प्रोजेक्ट है, आप इसको पूरा ओवरव्यू को पढ़ें। इसका जो फ्यूचर रोड मैप है ना, इस फ्यूचर रोड मैप को आप जरूर पढ़ें। यहाँ पे देखें फुल इकोसिस्टम। अभी ये जो है ना फेज 1, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग दोस्तों फेज 1 में है। फेज 1 में क्या हो रहा है, एआईपीएफ की लॉन्चिंग हो चुकी है, अभी ये करंट फेज में है। लेकिन ऑफिशियली लॉन्चिंग की बात करें तो बाकू अजरबैजान कंट्री में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है, जहां पे जो इसके क्रिएटर हैं उनके साथ में जो टॉप के 100 लीडर्स हैं जिन्होंने 31 दिसंबर के पहले स्टार्ट किया था, उन लोगों के साथ में उनकी मीटिंग है और वहां पे इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग है। उसके बाद जो माहौल बनने वाला है ना, दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। वहां पे एक माहौल बनने वाला है। तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ऑफिशियली लॉन्चिंग नहीं हुआ है। बाकी इसके क्रिएटर बाइनेंस के ऊपर आके लाइव सारी चीजों को बता के जा चुके हैं। और इसके जो जिन्होंने एआई डेवलप किए हैं, मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन, ब्लॉकचेन डेवलप जिन्होंने किया है, वो भी बाइनेंस के ऊपर आके सारी चीजों को बता चुके हैं। आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज के बाद फेज 2 में क्या हो रहा है, डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन हो जाएगा। फेज 3 में बोरोइंग एंड लैंडिंग का प्लेटफॉर्म आ रहा है। फेज 4 में एआई एनहेंस लिक्विडिटी, फेज 5, फेज 6, फेज 7 और फेज 8 एंड विजन अ फुली ऑटोनोमस एआई प्लस डाओ इकोनॉमी, राइट? और उसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, आप देखें बहुत सारी चीजें। आप इसको अगर पूरा पढ़ लिया ना, तो आप यकीन मानो आपको रियली समझ में आएगा। देखो आने वाले समय में इसका एआईपीएफ का नेटिव डॉलर भी आएगा, यूएसडीटी भी आ रहा है, एआईपीएफ यूएसडीटी स्टेबल कॉइन भी इनका खुद का लॉन्च होगा, खुद की ब्लॉकचेन भी आएगी। ये सारी चीजें मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पास्ट में हमने बहुत सारी चीजों को सुन लिया है। बट अभी जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है एआईपीएफ। और एआईपीएफ के अंदर हमें एंटर करना है, तो उसका पार्ट अगर बनना है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। और वो मौका कैसे है, मिनिमम यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो भी डॉलर है उतने आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे जाएं, इसमें स्वैप करें, आपके वॉलेट पे यहाँ पे आप कनेक्ट करें ऊपर। और कनेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे दोस्तों जैसे आप स्वैप में जाएंगे तो आपके पास में जो भी यूएसडीटी है, यूएसडीटी से आप यहाँ पे एआईपीएफ को बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एआईपीएफ है तो आप इसको सेल कर सकते हैं इंस्टेंट। दोस्तों आप एआईपीएफ से यूएसडीटी और यूएसडीटी से एआईपीएफ बाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से एआईपीएफ को बाई करते हैं, बाई करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग में हमारे पास में जो प्रोजेक्ट प्लान्स है जिसमें मिनिमम 45 डेज, 90 डेज, 180 डेज एंड 360 डेज। दोस्तों हम लोग जो एफडी करते हैं ना, आप सोच के देखो बैंक में जो हम एफडी करते हैं तो बैंक में हमें ईयरली 6 से 7% के आसपास मिलता है। सीनियर सिटीजन को कुछ थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप देखें 10 साल में हमारा पैसा डबल होता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एफडी करते हो मात्र जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ 30 दिन की एफडी करते हो, जैसे एक फिक्स मैं स्टैकिंग करते हो जो भी टोकन आपने लिए, आपको 1% पर डे कंपाउंडिंग में मिलता है। एवरी डे 1% यू आर गेटिंग एज अ कंपाउंडिंग, राइट? जो भी आपको रिवॉर्ड्स आ रहा है उस रिवॉर्ड्स को आप जब चाहें तब उसको विड्रॉ करें और यहाँ से कैश आउट करें। कैश आउट करके उसको स्वैप कर लें, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें, राइट? या तो आप P2P से किसी को ट्रांसफर कर दें। P2P से ट्रांसफर करोगे तो आपका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप यहाँ से स्वैप करोगे तो 5% जो है वो क्रिएटर को जाएगा, यही क्रिएटर की कमाई है, राइट? सो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, छोटा सा मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेटर में आप जाएं और यहाँ पे अगर आप 360 दिन को सिलेक्ट करते हो, 360 डेज में आपके पास एग्जांपल के तौर पे आपने मानो 1000 कॉइन यहाँ पे लेके अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपने 1000 टोकन यहाँ पे लिया और उसको स्टैक कर दिया। अगर आप दोस्तों 1000 टोकन आज की डेट में स्टैक करते हो तो आपका $2000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। बट आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से खुद डिसाइड करें। तो आप यहाँ पे 1000 टोकन अगर आप यहाँ पे मान लीजिए स्टैक करते हो, आपको दोस्तों डेली का 1% आता है। मतलब एक दिन में 2 बार आता है, एक बार दिन में 1:30 बजे आता है, एक बार रात को 1:30 बजे आता है। कितना आता है? 0.5%। सपोज आपने 1000 टोकन स्टैक किया तो आपको 0.5 यानी 5 टोकन आएंगे कब?
आपने स्टेक किया तो जो नियरेस्ट साइकिल होगी ना उसमें आपको नहीं आएगा। मान लो आपने अभी किया 8 बजे रात को किया तो आपको रात के 1:30 बजे वाली साइकिल में नहीं आएगा, क्योंकि 12 घंटे पूरे नहीं हुए। दिन की 1:30 बजे वाली साइकिल में आएगा। अगर आपने सुबह में किया है तो आपको दिन की साइकिल का नहीं आएगा। जो भी नियरेस्ट साइकिल होता है ना उसका रिवॉर्ड नहीं आता है, अगली साइकिल से हमारा रिवॉर्ड कंटिन्यू हो जाता है। एक दिन में 2 बार रिवॉर्ड्स आते हैं। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 1000 टोकन स्टेक कर लिया ना, देन आफ्टर 360 days you will get 36,271 tokens। दोस्तों 36,171 टोकन आपको मिलेंगे। सोच के देखो, आपका टोकन है ना दोस्तों 36 गुना टोकन हो गया, 36x, राइट। और इसका प्राइस प्राइस मैं बोलता हूँ अगर यही का यही प्राइस रहा, जो कि नहीं रहेगा, प्राइस हमेशा इसका ऊपर बढ़ेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगा। दोस्तों आप अगर यही का यही प्राइस मानो तो भी आपका पैसा 36 गुना हो गया। अगर आपने अगर मान लो कि $2,000 लगाए तो आपके कितने हो गए, यही प्राइस पे $36,000 हो गए। लेकिन दोस्तों अगर इसका प्राइस मिनिमम $10 हो गया ना, जो कि पॉसिबल है क्योंकि $1 से स्टार्ट हुआ था पिछले महीने में 1 जनवरी से, और अभी जाके इसका प्राइस $2 पहुंच गया है। और जिस तरीके से कम्युनिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से इसका जो एल्गोरिदम है, जिस तरीके से जो इसके अंदर का एएलएस का वर्किंग है, वो कभी भी प्राइस को नीचे नहीं जाने देता है। तो आप देखेंगे ना इसका प्राइस दोस्तों एक साल में $10, $15, $20, $25, $30 भी आपको दिखेगा। और उसके बाद जो रॉकेट बनेगा ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर हम $10 पे भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो भी आपका $3,62,710 मात्र एक साल में हो गया, राइट। अभी आप क्या करो, एक साल के बाद यानी 360 दिन में आप जब चाहो तब इसमें से निकाल सकते हो। आपका कैपिटल कभी भी आप निकाल सकते हो, जो भी आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। और दोस्तों आप इसमें से 6 गुना पैसा निकाल लो। 6,271 टोकन आप सेल कर दो, 30,000 टोकन आप अगले साल उसी में पड़े रह दो, तो वो ऑटोमेटिक कंपनी आपको रिवॉर्ड्स आता रहेगा। अगर आप देखें 30,000 टोकन आपके अगर अगले साल यहाँ पे ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हो रहे हैं ना, देन दोस्तों आपके हो जाएंगे, अब जरा कैलकुलेट करके देखो, 10,88,142 टोकन। दुनिया का सबसे पावरफुल दोस्तों कोई मैजिक है ना, एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। तो कंपाउंडिंग से आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा और आपका 30,000 का 10 लाख हो जाएगा। यानी ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट, एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दो और केवल आपको निकालना ही निकालना है। कोई 2x नहीं, कोई 3x नहीं, कोई अपलाइन को आपको टोकन बेचने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना। आप जब चाहो तब उसको विड्रॉ करो, कैश आउट करो, राइट। दोस्तों इतना बड़ा पोटेंशियल है। तीसरे साल में भी आप चाहो तो इसमें से 88,000 टोकन को सेल कर दो दूसरे साल, और बाकी 10 लाख को पड़े रहने दो अंदर। उससे जो स्टैकिंग से जो रिवॉर्ड आएगा उसको आप लेते रहो। दोस्तों लाइफ चेंज कर देने वाला प्रोजेक्ट है। अगर आपको 1000 टोकन भी दोस्तों अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मिनिमम से मिनिमम, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन आप अगर 100 टोकन भी यहाँ पे लेके स्टैक कर देते हो ना, दोस्तों आपका 100 टोकन का हो जाता है एक साल में 3627 टोकन, राइट। अगर $10 का प्राइस हुआ तो 36,270 टोकन, मतलब 36 लाख रुपए हो गए आपके मात्र $200 के सामने, जो आज आपने $200 लगाया ना। जबकि मुझे पता है कि हर किसी की सिचुएशन बहुत टाइट है, राइट। आज 2-2 $5-5 के लिए भी हम लोग परेशान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिस्टम आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए आया है। और ये रियल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जब बिटकॉइन इथेरियम जब स्टार्टिंग हुआ था ना, तो उसी फेज में दोस्तों हम लोग हैं एआईपीएफ के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो आप यकीन मानो अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों में जाएगी, और बाद में हम भी बोलेंगे काश, काश अगर कर लिया होता। दोस्तों दूसरे साल आपने क्या किया, 3600 टोकन में से 600 टोकन आपने बेच दिए, राइट। 100 टोकन डाले थे और 600 बेच, 6 गुना पैसा निकाल लिया। अभी 3000 टोकन जो पड़े हैं उसको आपने फिर से कंपाउंड होने दिया, 1,88,000 टोकन दोस्तों आपके दूसरे साल में होते हैं। इसमें से 8,88,000 टोकन को आप फिर से सेल कर दो, फिर 1 लाख टोकन को पड़े रहने दो। तीसरे साल आप कंपाउंड करोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इतना बड़ा पैसा यहाँ से बनता है। लेकिन अगर दोस्तों आपको नहीं 100 टोकन भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कम से कम दोस्तों 10 टोकन से भी आप इसको स्टार्ट करो, 10 टोकन से भी आप स्टैकिंग करो। और 10 टोकन में भी आप 3 साल का कैलकुलेशन आप देख लो, 10 टोकन का मतलब हो आज की डेट में करीबन $2,000। $2,000 भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, तो फिर कहीं ना कहीं पे सोचने की जरूरत है आपको, है ना, कि आप आए क्यों थे इस इंडस्ट्री में, है ना। 2000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आपने 10 टोकन यहाँ पे स्टेक किए तो आपका एक साल में 362 टोकन होता है। कुछ मत करो, आप बस स्टेक करके अपना जो काम कर रहे हो करते रहो, है ना। बस केवल यहाँ पे आके जूम में आते रहो, चीजों को समझते रहो। दोस्तों 362 टोकन आपका दूसरे साल में कंपाउंड होके होता है 13,130 टोकन। और यही 13,130 टोकन को दोस्तों आपने क्या किया, तीसरे साल में आपने फिर से यहाँ पे 13,130 टोकन को तीसरे साल घुमा दिया, तो आपके होते हैं 4,76,243 टोकन, राइट। ये नंबर ऑफ टोकन है। अभी 4,76,243 टोकन को दोस्तों मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ यहाँ पे,
4,76,243 इंटू केवल एक टोकन का 3 साल के बाद आप $10 प्राइस भी पकड़ो ना, जबकि इससे कई गुना ऊपर जाएगा, कई गुना ऊपर जाएगा। तो आप देखें इतना डॉलर होता है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 यानी $1 का प्राइस आप 100 रुपीज भी मान के चलो, दोस्तों इतना अमाउंट होता है। केवल ये 10 रुपए 10 टोकन का आज के 2,000 रुपए का मात्र 3 साल का कंपाउंडिंग का पावर है। और जब आपकी इच्छा हो तब बीच में आप अपना निकाल लो, 2,000 भी आप निकाल लो, 2-4 महीने के बाद में कंपाउंडिंग हो रहा है, उसको निकाल के आप 4-6 हज़ार रुपए बाहर निकाल लो। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से जा रही है दोस्तों, इसको हम हल्के में लेके कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में अगली जनरेशन जो है ना, अपने बच्चे हैं उनके सामने हम फिर से वही चीज बोलने वाले हैं कि यार बेटा बिटकॉइन भी गया था और एआईपीएफ भी हमारे सामने से निकल गया। दोस्तों अगर 10 टोकन 2,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना दोस्तों, एक टोकन से सिस्टम में आओ, राइट। आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, एक टोकन से अपना अकाउंट बनाओ। एक टोकन यानी मतलब 200-225 रुपए आप यहाँ पे स्टैक करो, एक टोकन से स्टैकिंग करो। एक टोकन का आपका एक साल में 36 टोकन होता है, और 36 टोकन को दोस्तों आप दूसरे साल में क्या करो, दूसरे साल में 36 टोकन का भी आपका कंपाउंडिंग का 1305 टोकन होता है, और तीसरे साल दोस्तों यही 1305 टोकन आपने निकाले नहीं, ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता रहेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, राइट। और ये 1305 टोकन का आपका 47,334 टोकन होता है दोस्तों। उसके बाद आप इसको जो 1% आएगा ना, तो आप उस 1% को आप उसका 1% कितना आएगा, 473 टोकन पर डे, राइट। अभी 473 टोकन को अगर $1 पे भी आप काउंट करो तो $473 हो गया दोस्त। और $473 का मतलब हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो कितना हुआ, मतलब 100 कर दो। $473 का मतलब अगर 100 रुपए से भी आप 3 साल के बाद कैलकुलेट करो तो कितना हुआ, करीबन आपका 47,000 से 50,000 के बीच में पर डे की इनकम हो गई। तो आप सोच के देखो यार, जिसको आज आपने एक टोकन से भी स्टैक करवा के कुछ नहीं किया, उसको बोला भाई आईडी पासवर्ड संभाल के रखना, चीजों को समझते रहो, 3 साल कैसे भी करके निकाल लो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी लाइबिलिटी है, बस एक टोकन स्टैक करके छोड़ दो, सिस्टम में बस बने रहो, है ना, सिस्टम को समझते रहो, चीजों को देखते रहो। तो दोस्तों यहाँ पे एक टोकन भी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये $10 का रेट आप गिन लो ना, तो 4,73,340 यानी करीबन 4-4.5 करोड़ रुपए होता है। तो हो सकता है पास्ट में आपने कहीं किसी दूसरे सिस्टम में ड्रीम्स देखे हो इतने अमाउंट के, लेकिन वो पूरे ना हुए हों। लेकिन दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिस्टम कहीं न कहीं पे उन लोगों के लिए आया ना, जो लोग कहीं न कहीं मार्केट में टूट चुके हैं, लायबिलिटी में फँस चुके हैं, कहीं न कहीं पे जिनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिनके सामने आँखों के सामने अंधेरा छा चुका है, एमएलएम के माध्यम से बर्बाद हो चुके हैं, क्रिप्टो के नाम पे बर्बाद हो चुके हैं। आज ना उनकी फेस वैल्यू बची, ना घर में इज़्ज़त बची, ना रिश्तेदारी में इज़्ज़त बची, और जहाँ पे भी दोस्तों देखो तो कहीं न कहीं पे लूटे गए हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों के लिए प्रोजेक्ट ऊपर वाले ने दिया है, और कहीं न कहीं जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दोस्तों बहुत संघर्ष कर लिया और इम्तिहान हो गई, है ना? तपस्या की मतलब इम्तिहान हो गई, हे प्रभु कब तक तपस्या लोगे? हे गॉड कब तक तपस्या लोगे? मतलब कब तक परीक्षा लोगे? तो परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई है, और एआईपी अब दोस्तों हम सभी के लिए वरदान बन के आया है। पर डिसाइड आपको करना है कि इस बार भी आपको डिसीजन लेना है, या तो फिर बाकी के जो आपके पास्ट के प्रोजेक्ट हैं, उनके अनुभव के आधार पे आपको इसको सुनना भी नहीं है, राइट? इसमें आपको ₹200 का भी आपको परहेज़ करना है। तो यहाँ पे आप सिस्टम को समझें दोस्तों, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत ही अमेजिंग है। अब ये जो सिस्टम है, इसमें ये तो आपकी सेल्फ स्टैकिंग हो गई, आप कुछ करो या ना करो, बट आपको यहाँ पे इतना तो मिलना ही मिलना है, जो आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके से आपको प्रॉफिट आपको जनरेट होना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा सीरियसली काम कर लेते हैं ना, सीरियसली मतलब ऐसे कि रेफर एंड अर्न का अगर आप यहाँ पे जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा-सा काम कर लेते हो, अगर आप छोटा-सा इसको प्रमोट करने का काम कर लेते हैं, अगर आप अपनी टीम बना लेते हैं और कुछ लोगों को अगर आप सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक और अपॉर्च्युनिटी है, और वो अपॉर्च्युनिटी ऐसी है कि आप किसी को भी यहाँ पे रेफर करते हो ना, तो रेफर करने पे इसमें जो है ना एक एडिशनल फीचर है, और जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्राइम रिवॉर्ड। प्राइम रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप जिस किसी को भी रेफर करेंगे तो उसकी आरओआई का 10% आपको आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपका खुद का आईडी एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव का मतलब होता है कम से कम $100 प्लस आईडी हमारी होनी चाहिए। $100 की अगर हमारी आईडी है और हम $100 वालों को नीचे रिकमेंड करते हैं, चाहे आपने भले किसी को एक टोकन से स्टार्ट करवाया, आगे जाके उसमें 10 टोकन और लगवा दिए, फिर 5 लगवा दिए, फिर 20 लगवा दिए, फिर 40 लगवा दिए, जैसे करके उनका $100 का आईडी एक्टिव हो जाएगा ना, तो उनकी आरओआई का 10% आपको आना शुरू हो जाएगा, राइट। और आप दोस्तों कितने भी आप डायरेक्ट लगाएं, हर किसी की आरओआई का 10% आपको आता है। दूसरा होता है दोस्तों अलायंस रिवॉर्ड। अलायंस रिवॉर्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी को रेफर किया, उन्होंने किसी और को रेफर किया, उन्होंने किसी और को रेफर किया, ऐसे करते 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 आपकी टीम बन जाती है, और आपकी खुद की आईडी $100 से है, और आपकी टोटल टीम में $5,000 का बिजनेस हो जाता है, अप टू अनलिमिटेड डेप्थ,
ऐसा नहीं है कि 10 लेवल की 5 लेवल, कितने भी लेवल के नीचे सिंगल लेग लेग में भी अगर आपका काम हो गया और $5000 का बिजनेस होता है, तो आपको दोस्तों टोटल टीम की आरओआई का 10% मिलता है। आप सोच के देखो, डायरेक्ट का 10% तो आपको अलग से मिल रहा है, और यहाँ पे टोटल टीम की आरओआई का 10% आपको मिलने लगेगा। कंडीशन एक ही है, आपकी खुद की आईडी $100 प्लस होनी चाहिए और नंबर ऑफ डायरेक्ट आपके 2 होने चाहिए जो कि एक्टिव होने चाहिए, राइट? कम से कम $100 के होने चाहिए। तो आपको टोटल टीम की आरओआई का 10% और डायरेक्ट में जो है ना 10 + 10 यानी 20% आपको डायरेक्ट का मिलेगा आरओआई का। सेकंड रैंक है, बीवा रैंक है। बीवा पे दोस्तों $500 की आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए और टोटल बिजनेस आपका $20,000 का होना चाहिए, जिसमें 5,000 पुराना और 15,000 नया, राइट? अप टू अनलिमिटेड डेप्थ, भले ही सिंगल लेग में भी क्यों ना हो। बस आपके 3 डायरेक्ट होने चाहिए, तो आपका 20% टोटल टीम की आरओआई का मिलता है, प्लस 30% आपको डायरेक्ट से मिलता है, क्योंकि 10% तो आपको अलग से मिल ही रहा है। इस तरीके से दोस्तों कोर रैंक पे $50,000 का बिजनेस, 4 डायरेक्ट, 30%। फ्लक्स चौथा रैंक है, जिसमें $1,50,000 का बिजनेस, 5 डायरेक्ट, $100 के, तो आपको 40%। इसके अलावा जो अगला रैंक है 50, 60, 70, 80, 90, 20, 80, 90, 100, 100 के बाद में 110, 120, 130, 150 एंड 100, मतलब 150% तक की आरओआई है। इतना पावरफुल सिस्टम दोस्तों, जो आप सोच के देखो 150% तक आरओआई दे रहा है। अगर आपने 15th रैंक अचीव कर लिया, तो आपको यहाँ पे जो है अपेक्स रैंक में 150% तक की आरओआई आ रही है, राइट? दोस्तों ये सिस्टम बहुत ही यूनिक है, और कहीं ना कहीं पे देखिए बहुत सारे सिस्टम हमने भी देखे हैं, टोकन के सिस्टम भी देखे हैं, कॉइन के सिस्टम भी देखे हैं। एक लेवल पे जाके वो सारे के सारे सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, और क्रैश होने का मतलब होता है कि जब उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाती है ना, तो स्टार्टिंग के लोग तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो एंड वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो बिडवल सिस्टम है ना, वो इतना शानदार बनाया हुआ है कि उसकी वजह से कभी भी इसका प्राइस डंप नहीं हो सकता। और वो विड्रॉल सिस्टम क्या है, जब भी आप विड्रॉल करेंगे, चाहे आपकी आरओआई का विड्रॉल करें, चाहे आप अपनी उसकी टीम इनकम का विड्रॉल करें, तो आपको 5 ऑप्शंस आएंगे, और पांचों ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है कि आपको अभी क्या भी चाहिए, तो 20% आपको एज ए फीस बाहर से आपको यूएसडीटी पे करना पड़ेगा, राइट? मतलब अगर आपको $100 के आईपीएफ का विड्रॉल चाहिए, तो आपको $20 बाहर से आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा। वो $20 आपके कट जाएंगे, और $100 का विड्रॉल आपको टर्बो में मिल जाएगा। अगर आपको 10 डेज में चाहिए तो 15%, 20 डेज में चाहिए तो 10%, 30 डेज एंड 60 डेज, 30 डेज में 5% और 60 डेज में 0%। यानी इससे क्या होगा, लोग एक साथ में विड्रॉल नहीं लगाएंगे, बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे, बड़ा विड्रॉल नहीं लगाएंगे। लोग बोलेंगे चलो ठीक है, हम 60 दिन का विड्रॉल लगा देते हैं। अगर किसी का मानो 60 कॉइन का विड्रॉल है, उसने 60 दिन में लगा दिया, तो उसको पर डे का पर डे एक एक कॉइन वहां से निकलता रहेगा, टर्बो में आता रहेगा, और वो टर्बो से मैन वॉलेट में निकालता रहेगा। अगर कोई 30 डेज में विड्रॉल लगाता है, तो उसको 5% फीस पे करना है, और उसको पर डे के पर डे जितना भी विड्रॉल लगाएगा वो 30 डेज में डिवाइड हो जाएगा। सो दोस्तों ये टर्बो में आता है। टर्बो में आने के बाद ये जो है सबसे जबरदस्त इसका फीचर है, और वो ये है कि जैसे वो टर्बो में आता है ना, तो टर्बो में मान लीजिए आपके $10 का ईआईपीएफ आया, और आपको उसको बाहर निकालना है, तो आपको $10 बाहर मैन वॉलेट में रखना पड़ेगा। जैसे आप मैन वॉलेट में $10 रखेंगे पॉलीगॉन के यूएसडीटी, और आप जैसे ही $10 लगाएंगे, तो जो आपके $10 है ना, वो $10 के सामने तुरंत आपको स्वैप एंड विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, तो आपके तुरंत जो है $10 के एआईपीएफ आपके मैन वॉलेट में आ जाएंगे, राइट? तुरंत जितने डॉलर का आपको विड्रॉ लगाना है ना, उतने डॉलर आपके वॉलेट में होने चाहिए। अगर आपको $100 का विड्रॉ लगाना है, तो आपके पास $100 बाहर मैन वॉलेट में होने चाहिए। अगर आपको $1,00,000 का विड्रॉ लगाना है, तो आपके पास $1,00,000 होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी व्हेल्स होती है ना, जो किसी भी प्लान को, किसी भी क्रिप्टो को जो क्रैश करते हैं, जो डंप करते हैं ना, उन लोगों के लिए बैरिकेडिंग बनाया हुआ है कि कोई बंदा है जिसके पास मानो 10 लाख कॉइन पड़े हैं आज से साल 2 साल के बाद, और वो 10 लाख कॉइन का अगर उसको विड्रॉ लगाना है, और एक कॉइन का रेट अगर $10 है, तो उतनी वैल्यू के उसके पास में बाहर यूएसडीटी होने चाहिए, राइट? तो कभी भी क्या होगा, कोई भी बंदा बड़ी लेवल पे इसका विड्रॉल नहीं लगा सकता। 2-4-5 हज़ार डॉलर का विड्रॉल लगाते रहेंगे, रोज रोज विड्रॉल लगाते रहेंगे, कई बार 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 लगाते रहेंगे, लेकिन बड़ा अमाउंट यहाँ से निकलेगा नहीं। अब इसके बाद भी लॉजिक को समझिए। आपने मानो $10 का विड्रॉल लगाया, तुरंत आपके जो बाहर $10 पड़े थे वो अंदर चले गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां से लिक्विडिटी कम नहीं हुई। जैसे आपने $10 का ईआईपीएफ निकाला, तो बाहर आपके पास आ गया, और बाहर के जो $10 है वो चले गए कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले गए कितने टाइम के लिए, अगले 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद वो वहां से रिलीज हो जाएंगे, और आपको $10 की वैल्यू के ईआईपीएफ आपके पास बाहर आ जाएंगे। बस आपको सिंगल क्लिक करना है, रिलीज पे क्लिक करना है। 12 घंटे के बाद आपके
वो एआईपीएफ भी आपको बाहर मिल जाएंगे। यानी $10 जो आपने बिटडॉल लगाया था ना, तो $10 के एआईपीएफ आपको तुरंत मिल गए, लेकिन उसके सामने आपके $10 लिक्विडिटी में ऐड हो गए, जिससे लिक्विडिटी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट का जो बैलेंस है वो बिल्कुल हिला ही नहीं, राइट? अब 12 घंटे बाद क्या हुआ? 12 घंटे बाद आपके वो रिलीज हो गए। 12 घंटे में और भी इंटरनेशनल लेवल से कम्युनिटी आई, उन्होंने बाई सेल किया, उसके प्राइस को वापस से मेंटेन कर दिया और आपका उन्होंने वापस रिलीज कर दिया। यानी कल के दिन मानो कोई बंदा $10,000 का बिटडॉल लगाता है, तो वो $10,000 बाहर रखेगा मैन वॉलेट में, और 10,000 का बिटडॉल लगाएगा, तो $10,000 के एआईपीएफ बाहर आ जाएंगे और $10,000 लिक्विडिटी में जाके वापस चले जाएंगे। तो वहां पे लिक्विडिटी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, राइट? आपने आपने उसमें से तालाब में से 5 बाल्टी पानी निकाला और 5 बाल्टी आपने वापस डाल दिया, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, राइट? अभी क्या हुआ, अगले 12 घंटे के बाद और लोग आए, उन्होंने एक एक बाल्टी पानी डाला, 5 बाल्टी वहां पे हो गया, तो बाकी आपका वो जो 5 बाल्टी पानी वो आपको वापस मिल गया। 12 घंटे में तो पता ही नहीं चला कि भाई यहाँ पे कुछ किसी ने निकाला है। तो ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। इसको अपने जिसने भी आपको इनवाइट किया उनके माध्यम से आप समझिएगा, कोशिश कीजिए समझने का। और बहुत ही वंडरफुल सिस्टम बनाया हुआ है। और साथ में दोस्तों, इसका जो एएलएस है, एएलएस बहुत ही वंडरफुल फीचर है यहाँ पे, जो अपने आप से इसके रेट को मेंटेन करता है। तो वो भी आप डेक्स स्क्रीनर पे जाके चेक कर सकते हैं। डेक्स टूल में जिस दिन से लॉन्च हुआ है, वहां से दोस्तों टॉप 10 में ये रैंक कर रहा है। और कहीं ना कहीं पे जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है दोस्तों, रियली ही इज आपका ट्रू फ्रेंड, वो आपका सच्चा दोस्त है जिसने आपको इनवाइट किया है। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने उसके साथ आपके साथ उसने शेयर की है, तो उसको आप थैंक यू जरूर बोलिएगा। और दोस्तों अगले 10 मिनट और बने रहिएगा। अभी हम टेस्टिमोनियल वाले पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई 5 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, 5 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 5 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। सो दोस्तों बने रहिएगा अगले 10 मिनट और हम यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल लेंगे, ऐसे लीडर्स की टेस्टिमोनियल लेंगे जिन्होंने दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, और काफी हद तक क्रिप्टो के बारे में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं कुछ हैंडल्स चाहूंगा जो लीडर्स भी कंफर्ट जोन में और अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं। सो प्लीज आप कंफर्ट जोन में है तो आपकी शेयरिंग दीजिएगा, और एक मैसेज दीजिएगा दोस्तों को, जिससे उनको हेल्प मिले डिसीजन लेने में। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में किशोर जी डोडिया सर हैं, तो स्वागत है सर आपका, आप अनम्यूट करें और आपकी टेस्टिमोनी से ही शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू कृष्णकांत जी। होप मेरी आवाज आ रही होगी। यस यस सर, ये लाउड एंड आवाज आ क्लियर। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। रही। तो सबसे पहले तो मैं कृष्णकांत जी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही पैशनेटली ये कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, और हम लोग बहुत ही लकी है कि हम उनकी लीडरशिप में आगे ग्रो कर रहे हैं। और जितने भी लोग नए आए हुए उनके लिए मेरा ये मैसेज है। जैसे कि मेरा नाम किशोर जी डोडिया है, मैं गुजरात गांधीनगर कैपिटल से बिलोंग करता हूँ, और 10 साल से ज्यादा मैं दुबई रहा हूँ, और मेरा बहुत ही बड़ा तजुर्बा है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। बहुत से मैंने कॉन्फ्रेंस समिट अटेंड करी हुए, सिंगापुर दुबई सारी जगह, और दुबई तो आप जानते हो हब है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं कहता हूँ कि ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट आज तक मेरे ध्यान में नहीं आया। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, एकदम ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रस्ट कर सकते हो। कृष्णकांत जी ने सारी चीजें समझाई है कि भी कैसे हम लोग डैश टूल में जाके, डैश के अंदर में जाके इसी प्रोजेक्ट की हम खराई करते हैं। जैसे एक जौहरी होता है ना, एक सोने की खराई करता है, उसको पता है ये 24 कैरेट सोना है, ये 22 कैरेट है, 20 कैरेट है। ये 24 कैरेट सोना वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कैरियर बना सकते हो, आपके जो भी ड्रीम्स है, क्योंकि इनका प्लान इतना शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ है। रेफरल मॉडल बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर आपने एफर्ट्स लिए, कुछ भी एफर्ट्स दिए हैं, वो एफर्ट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत आपको औसम रिजल्ट देने वाले हैं। शानदार प्रोजेक्ट है। इसका जो स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का डिजाइनिंग किया, उसके पीछे लॉजिक और इंटेलिजेंस जो डाला हुआ है, वो प्रोजेक्ट को कभी डंप होने नहीं देगा। बड़े बड़े अगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स आएंगे, बड़ी बड़ी वेल्स आएगी ना, तो भी ये प्रोजेक्ट को डंप नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, आज हमारी सेफ्टी, हम लोग सब सेफ्टी नेट के अंदर बैठे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जिन जिन लोगों ने इसके अंदर स्टेकिंग किया है, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन से समझाते हैं कृष्णकांत जी की, भाई आपके पास अगर 10 AIPF है, $10 है, $500 है, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को आप सिक्योर कर सकते हो। आज तक आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, मुझे पता है बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट को, कि यहाँ जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं कहीं कोई अपनी नॉलेज की वजह से, या तो कोई गलत नॉलेज मिला हो, या अपलाइन ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, या उनका इंटेंशन नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि उनके पास भी नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते करते बहुत से लोगों ने नुकसान भी किया होगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि अपने आप को भगवान का ब्लेसिंग मानिए। आप लोग लकी मानिए कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर आपके पास आ गया है। तो आप अपना ड्रीम्स यहाँ 100% फुलफिल कर पाएंगे।
और जिसी तरह से इसका ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया हुआ है ना, क्योंकि ये जो जो टेक्नोलॉजी जानते हैं ना, उनको पता होता है कि ये यहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ कोई ह्यूमन का कोई इमोशंस काम नहीं करता है, यहाँ फियर और ग्रीड काम नहीं करता है, यहाँ पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉजिक और इंटेलिजेंस काम करता है। कि अगर जैसे कि ये पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है। डेटा एनालिसिस क्या करता है कि ये प्रोजेक्ट में देखता है कि कितनी लिक्विडिटी है, कितने होल्डर्स है, होल्डर्स के पास कितने कॉइन पड़े हुए हैं, रोज कितना उसमें मिंटिंग हो रहा है, कहाँ से बिक रहा है, कौन आ रहा है, हाँ सारी चीज देख के वो तुरंत ऑन टाइम डिसीजन ले लेता है और प्रोजेक्ट को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करता है। इसी प्रोजेक्ट में कभी भी प्राइस एकदम से डंप नहीं होने वाला है, डंप का मतलब कम नहीं होने वाला है, और एकदम से जंप भी नहीं होने वाला है, कम भी होने वाला नहीं है। तो बहुत ही स्टेबल और ऑर्गेनिक तरीके से जाएगा। मतलब हम लोग, हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। अगर प्राइस एकदम से जंप हो जाए तो भी कम्युनिटी को लाना बहुत मुश्किल होता है, फिर कम्युनिटी डर जाती है कि यार इतना बड़ा ज्यादा प्राइस होगा तो कैसे कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। अगर कम भी हो गया तो कम्युनिटी डर जाती है। लेकिन ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। आने वाले 10 20 50 साल अगर कितना भी आप चाहो तो इसी प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो। और मेरा जो तजुर्बा एक्सपीरियंस है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये प्रोजेक्ट में आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद कृष्णकांत जी ने मुझे मौका दिया। थोड़ा आज ज्यादा वक्त ले लिया है मैंने, तो और थैंक आगे यू। सबके लोगों को मौका थैंक देंगे। यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग सर, और आपका एक एक शब्द हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जो हमारे बीच में आप आते सर, हम सभी का सौभाग्य है। अख्तर सर, अगर आप कंफर्ट जोन में, मोस्ट वेलकम। आप आपकी टेस्टिमनी, आपकी शेयरिंग आप रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस इंटरनेशनल मंच पे एआईपी के इंटरनेशनल मंच को इनवाइट किया। वाकई में इस सिस्टम को जब हमने देखा तो अंदर से आवाज़ आई कि वाकई में इस सिस्टम के अंदर ही सपने सच होंगे। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज कई प्लेटफॉर्म किए, तब हमको और हम लोगों को नॉलेज नहीं है कि डिसेंट्रलाइज चेक कैसे किया जाता है। तो इस सिस्टम के आने के बाद जब हमको बताया गया कि डिसेंट्रलाइज को चेक करना पैरामीटर ये है, तो वाकई में होश उड़ गए कि हम लोग तो अभी तक एकदम अंधकार में जी रहे थे। जिस चीज़ को हम डिसेंट्रलाइज बता बता करके सीना ठोक करके मार्केट में बताते थे, यकीनन वो अंदर से उसके अंदर छेद था और वो डिसेंट्रलाइज था ही नहीं। और ये सिस्टम वाकई में जो आइडियोलॉजी इसके अंदर डाली गई है, जिस तरीके से इस सिस्टम के क्रिएटर ने इसको बनाया है, यकीनन वो बहुत ही विजनरी माइंड का बंदा है। जो भी व्यक्ति इसका क्रिएटर है, हम उसको दिल से नमन करते हैं कि आज की डेट में उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया है, ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया है कि इसके माध्यम से हम सभी लोग अपने सपनों को यकीनन पूरा करेंगे और 100% पूरा करेंगे। बहुत ही कम समय में लोग यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी अर्निंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये पावर है एआईपीएफ का। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जितने भी हमारे नए साथी यहाँ पे आए हुए हैं, इस सिस्टम को आपने समझ ही लिया होगा कि यही वो सिस्टम है जहाँ से सपने सच होते हैं। थैंक यू कृष्णकांत सर, ओवर थैंक टू यू यू। अख्तर और सर, लोगों को थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आते रहिएगा इसी तरीके से, मार्गदर्शन करते रहिएगा। शिवराम कश्यप जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करें सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया, और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज सभी लोग मतलब जो है रंगों से नहाए हुए हैं, और हम तो ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने का मौका इस एआईपीएफ के माध्यम से हम सभी को मिल गया है। तो बाहर के रंग से रंगने से कोई फायदा नहीं है, वो तो छुटाना भी पड़ेगा कभी न कभी। लेकिन जो अंदर की जिंदगी है, मतलब इनर पावर को मतलब जो है मजबूत बनाने का जो कॉन्सेप्ट हमको मिला है, वो एआईपीएफ है। और निश्चित रूप से हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क पे ये सिरे पर बैठ करके मतलब जो है एक संकेत दे रहा है कि भाई आ जाओ, और यहाँ से मतलब जो है जितना कमाना चाहो उतना कमा लो। क्योंकि पॉलीगॉन के नेटवर्क पे ये 1 नंबर पे या 2 नंबर पे हम इसको वॉच कर सकते हैं एनी टाइम। तो एक बहुत बड़ा मतलब जो है हम लोगों को ये संकेत दे रहा है कि भाई ये इसके अलावा मतलब जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक हम लोगों को मिला ही नहीं, जो इतना जबरदस्त तरीके से मतलब जो है हम लोगों को संकेत दे रहा है कि भाई यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है, सारे सपनों को साकार किया जा सकता है। बशर्ते हमको चाहिए ये कि अपनी चाहत को जो हवा मिलनी चाहिए वो हवा जरूर देते रहिए, नॉलेज से, मीटिंग से। और जो कृष्णकांत जी जो प्लान प्रेजेंट करते हैं,
जो बिल्कुल सुधरी हुई भाषा, बिल्कुल ऐसी भाषा जो सादा भाषा, जो एक आम आदमी को समझ में आती है। किसी प्रकार का इंग्लिश का बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब जो है टफ मतलब जो है भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। काबिले तारीफ है सर। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। थैंक यू शिवराम जी, बहुत बहुत शानदार आपकी शेयरिंग। मिस्टर एस एस सोनी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका, आपकी शेयरिंग आप रखें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मैं गुजरात राजकोट से बोल रहा हूँ और मैं डे 1 से AIPF कर रहा हूँ। रात में भी करता हूँ, दिन में भी करता हूँ, पूरा 24 घंटा करता हूँ। और आज अच्छी खासी रैंक पे चला गया और मैंने कार इश्यू की है, नई कार बुक करवा दी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे पैनल की तरफ से सर, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर सर। कार का नाम, पर कौन सी कार आपने बुक करी है? खैर किया कार कैरेंस क्लेविस। जबरदस्त, 7 सीटर। यस सर। या ग्रेट सर, ग्रेट। प्लीज यानी कंटिन्यू। मेरी अपॉर्चुनिटी सब पूरी हो रही है और अच्छे खासे मैं टीम को भी हेल्प करता हूँ और आगे जाके भी हेल्प करूंगा सबको भी। बहुत बहुत शानदार सर, और डेफिनेटली ये होली आपके लिए सर बहुत शानदार होली रही है, और कहीं ना कहीं अगले साल की होली बहुत इससे भी कई गुना लेवल ऊपर होने वाली है। सर एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जी। डे 1 से मैं इसके अंदर हूँ और मेरा गोल एक ही है कि हर महीने में हर हर टारगेट को पूरा करता हूँ, हर लेवल को पूरा करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली होगा। और लेवल जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे पता भी चल रहा है हमें कि एक एक लेवल की इनकम कैसे बढ़ती है। अभी फिफ्थ लेवल पे पहुंच जाऊंगा सर। फिफ्थ लेवल या सिक्स लेवल? फिफ्थ। फिफ्थ लेवल, ओके सर। चलिए, ओके थैंक। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर आपने गाड़ी बुक की है, और इसी तरीके से जितने भी दोस्त हैं वो सभी दोस्त भी यहाँ से अपने सपने पूरे करें। सो आर के दीक्षित जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें। सर ये सोनी साहब का एक्सपीरियंस सुन के वाकई बहुत गजब की एनर्जी आ गई है। और कितना शानदार सिस्टम है कि जिसको इतने जल्दी फास्ट लोग इतना फास्ट काम कर पा रहे हैं और ऐसे ऐसे अचीवमेंट निकाल पा रहे हैं। सर सिस्टम इतना पावरफुल है, बाकी काम करने में मजा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी अपने नियर एंड डियर हैं, जितने फास्ट जितने उन तक पहुंच पाए कैसे भी माध्यम से, क्योंकि ये अगर वो आपने थोड़ी सी देर कर दी और वो कहीं और जुड़ गए तो आपका नुकसान है। और अगर उनको आपने देर से बताया तो वो आपको उलाहना देने वाले हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो सर बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत अच्छे सिस्टम से ड्राइव भी हो रहा है, मजा आ रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति जैन मैडम, अगर आप कंफर्ट जोन में, सो यू आर मोस्ट वेलकम, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सभी को एंड होली की शुभकामनाएं सभी को। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस यस मैम, लाउड एंड क्लियर। सोनी सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका एक्सपीरियंस सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वाकई में इस प्रोजेक्ट में काम करके सर इतना अच्छा लग रहा है कि अब तक ये प्रोजेक्ट कहाँ था, क्यों नहीं बना था हमारे लिए, क्यों इतना स्ट्रगल हमारी डेस्टिनी में लिखा था कि हमने इतनी जगह ठोकरें खाई, इतनी जगह अपने पैसों को लॉस किया, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट आया है कि अब मतलब रुका ही नहीं जा रहा। घर में होली है, फेस्टिवल है, बट मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं घर में त्योहार मनाऊं। मेरा मन सारे दिन यही कर रहा है कि बस EIPF के लिए सबको कॉल करूं, सबको बताऊं। बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत जल्दी सर मैं सेकंड लेवल अचीवर बनने वाली हूँ। होली के बाद बहुत अच्छे लेवल पे काम करूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम इन एडवांस, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। पूजा मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, पूजा मैम, इफ यू आर इन कंफर्ट जोन एंड वांट टू शेयर योर शेयरिंग्स, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आई विल कॉल टू। जी हेलो। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आई होप सभी की होली बहुत अच्छी हुई होगी इस साल। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद का मुझे पूरा बिलीव है कि हम सभी ने जो AIPF राइट टाइम पे ज्वाइन कर लिया है, तो आने वाले आगे के फेस्टिवल सभी हमारे इससे भी बहुत